religious harmony. We should simply listen to what one says, and if what he says is good, right, and true, or if there is any benefit to us or to our society or to the humanity as a whole, then we should readily accept it. There is no reason to inquire about the biodata of the speaker, nor is there any necessity to inquire as to which race, community, caste, creed, sect or religion he belongs to. हमें वो सब सुनना चाहिए जो सही है, अच्छा है और सत्य है, और या उससे हमें कुछ लाभ है, हमारे समाज के लिए लाभ है या इंसानियत के लिए लाभ है, तो हमें उस वाक्य को सहज ही में स्वीकार करना है। इसमें वह कौन सा धर्म का है, कौन सा जाति का है, कौन सा रिलीजन कम्युनिटी का है, यह देखना ज़रूरी नहीं है। The terms like Christian, Muslim, Hindu, Buddhist had been coined by human beings only. If a man of Bihar in Muslim faith can save and give a new life to a Arunachali in Ramphra faith by donating blood, then what is the difference between a Muslim and a Ramphraite or a Bihari or an Arunachali? The truth is that we are all simply human beings acted upon by the same law of nature. ये जो क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, बुद्धिस्ट आदमी लोगों ने ही दिया है, किसी धर्म गुरु ने ही बनाया है यह नाम। अगर कोई एक आदमी बिहार से अगर कोई अरुणाचली को खून देकर उसका जान बचा देता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वह एक बिहारी है, अरुणाचली है, रमफ्राइट है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है। हम सब एक इंसान हैं और हम पर भगवान का सेम मदर सृष्टि माँ का वही कानून लागू है सभी के ऊपर। According to the law of God, we are simply human beings. So if you respect God, you ought to respect His laws too. You are to respect every human being as simply human being only. There is no reason to give special respect for being in certain caste, community, sect or religion, and less respect for being in other. भगवान की तरफ से हम इंसान ही है, और अगर आप भगवान को मानते हो, उसे इज्जत देते हो, तो उनका लॉस, उनका जो कानून को भी आप मानिए। वो जो कहता है कि सभी आदमी को बराबर मानिए, वह अपना धर्म का है, अपना जाति का है, अपना जगह का है, ऐसा सोच के उसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देना और कोई दूसरा जाति धर्म को कम इज्जत देना, ऐसा नहीं करना है। If I suffer from malaria fever, I tremble. So is the case with those belonging to other faiths. It is not that they will not tremble. अगर मलेरिया हुआ तो मैं जितना कांपूंगा मलेरिया के कारण, उतना ही वो दूसरे धर्म वाले लोग भी कांपेंगे और तकलीफ में होंगे। Whether one takes meal by his left hand or right hand makes no difference. So is the case with the religion. अगर आप खाना दाएं हाथ से खाते हो या बाएं हाथ से खाते हो, यह फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार ही सब ये दुनिया में जितना पंथ है, रिलीजन है, वही इसी प्रकार केस है। Some prefer sweet while other prefer sour. We cannot claim the superiority of sweet over sour and vice versa. So is the case with religion. किसी को मीठा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, तो हम कह नहीं सकते कि मीठा ही खट्टा से ज़्यादा बेहतर है या खट्टा ही मीठा से ज़्यादा बेहतर है। वैसे ही है रिलीजन भी। My mother is best for me, so is his mother best for him. Similarly, my religion is best for me, so is Christianity for a Christian, Buddhism for a Buddhist, and so on. Therefore, no one religion is inferior or superior as such. जिस प्रकार मेरा माँ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और उसको उसकी माँ सबसे ज़्यादा पसंद है, उसी प्रकार मेरा धर्म ही मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है, और क्रिश्चियंस को क्रिश्चियनिटी पसंद, बुद्धिस्ट को बुद्धिज़्म पसंद। कोई किसी से बड़ा नहीं या छोटा नहीं है। ग्रीड फॉर नेम एंड फेम, रैंक एंड स्टेटस, पावर एंड मनी,
etc. is a sin, but greed for one's religion is the greatest sin according to Rangfraism, because it can prove disastrous and may take thousands of lives. नाम, इज्जत, शोहरत, पावर के लिए लोभ करना पाप है, किंतु अपने धर्म के लिए लोभ करना उससे भी बड़ा पाप है, क्योंकि इसके कारण से बहुत सारा लोगों का जान जा सकता है और बहुत सारा जान गया भी है भूतकाल में। According to Rangfraism, religions of the world are nothing but various methods of imparting spiritual training so as to make an individual a good and a responsible member of a society. Therefore, the Rangfrites find no reason to criticize any religion, for the Rangfrites to which religion one belongs to is not a matter of concern, but as to whether one has become a good and a responsible member of a society or not, that really matters. रंगफ्राइज़म में जितना भी धर्म है दुनिया के बारे में, वह एक केवल प्रक्रिया है आदमी को अध्यात्म का रास्ता में चलने के लिए ट्रेन करना, और एक अच्छा आदमी, एक दायित्ववान रिस्पॉन्सिबल आदमी समाज का बनाने में मदद करता है रिलीजन। ये है रंगफ्राइज़म का व्यू में। इसीलिए रंगफ्राइज़म में रंगफ्राइट्स कोई ऐसा कारण नहीं जान पड़ता है जिससे वह दूसरे धर्म के बारे में ख़राब कहें, और या रंगफ्राइट्स यह नहीं देखता है कि वह किस धर्म से आया है, किंतु यह ज़रा इम्पोर्टेंट होता है कि वह एक आदमी अच्छा आदमी और रिस्पॉन्सिबल आदमी बना है कि नहीं, वो ज़रा इम्पोर्टेंट है। Religious harmony begets peace, hence without religious harmony there cannot be peace. But to achieve religious harmony, everyone should strive for unity in diversity, coexistence rather than unity in uniformity, exclusive survival. धर्म के बीच में शांति तभी स्थापना होगा जब सभी एक दूसरे के अनेकता को एक्सेप्ट करें, ना कि एक ही तरह का सभी जगह धर्म हो। अनेकता में एकता जब देख पाए, उसी में से रिलीजियस हार्मनी होगा, ना कि मेरा ही धर्म सबसे सभी जगह फैलना है। यह अगर लोगे तो शांति स्थापना नहीं होगा।